Hello everyone, Namaste. मैं हूं निष्ठा. This week I have completed 1 year of living in London. इस हफ्ते मेरा 1 साल complete हो गया है लंदन में रहते हुए. So I thought it is a good time to make this video and share my experiences with everyone. If you are planning to move to London, especially भारत से, or if you are just planning to visit London, do watch ahead. यहाँ लंदन में मौसम पे चर्चा जरूर होती है. Always every conversation will have something about the weather. तो हम भी अपनी चर्चा की शुरुआत मौसम के हाल से करते हैं. Let's begin with weather. But before we begin, do like and subscribe. As opposed to the common belief, it is always raining here. It actually is not. There are a lot of overcast days. बादल ज़्यादा छाए रहते हैं. बारिश कभी भी हो जाती है. लंदन में it rains at any time. You should always be prepared. लंदन में जो weather app है, that absolutely can be trusted. आपको हमेशा घर से निकलते हुए weather app जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि in one day weather can change dramatically. It can be sunny and then it can be rainy. It can get windy. तो accordingly you should be dressed and well prepared too. Snow यहाँ पर उतना होता नहीं है. Other parts of the UK में there is a lot of snow, but within London there is हार्डली एनी स्नो. और अगर हम सीजन्स की बात करें तो राइट नाउ समर शुरू हो चुका है, तो टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ते जाते हैं और गर्मी बढ़ती जाती है. यहाँ पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन कुछ दिनों में काफी सनलाइट मिल जाती है लंदन में. पिकनिक्स आर क्वाइट अ कॉमन सीन देयर. खाने पीने का सामान लेकर सब लोग पार्क्स में बैठे रहते हैं. पार्क्स एंड रिवर साइड्स आर क्राउडेड एट दिस टाइम बिकॉज समर इज व्हाट एवरीवन लव्स हियर. लंदन में सनलाइट उतनी ज्यादा साल भर नहीं मिलती बिकॉज एज आई सेड यूजुअली इट इज ओवरकास्ट. देयर आर अ लॉट ऑफ कोल्ड एंड वेट डेज हियर. समर के टाइम पर सनराइज भी बहुत जल्दी हो जाता है. सुबह से तेज धूप दिखने लग जाती है और रात 9 बजे तक उजाला रहता है बाहर. इट इज ब्राइट आउटसाइड इवन टिल 9 PM. बट ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट. एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज डे लाइट सेविंग, जिसके बारे में मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बात की हुई है. विंटर्स में सनराइज बहुत देर से होता है, तो सुबह उठ के लगता है कि अब अभी सुबह कहाँ हुई, अभी भी बाहर अंधेरा है. सनसेट इतनी जल्दी हो जाता है, 4 बजे तक बाहर अंधेरा होने लग जाता है. विंटर्स आर कोल्ड, वेट and of course hardly any sunlight, so a lot many times winter blues set in. लोगों को डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं, but there are a lot of things to help people with that. Winter time में the highlight is the Christmas celebrations. यहाँ पर festivities होती हैं, 2-3 महीनों की festivities चलती हैं for Christmas, and that is also a way to uplift your mood for the winter. From Christmas trees to all these decorations देखने जाना to all these celebrations. Ice skating होती है अलग अलग जगहों पर. Winter में there are of course the winter blues, but then there are also the festivities to look forward to. London में public transport is very well connected, and as you know London is divided into zones and every zone is very well connected with each other, क्योंकि यहाँ पर overground trains, underground trains, tubes, buses सब कुछ बहुत अच्छे से connected है. हमने अभी तक कार ली नहीं है and we do not intend to anywhere in the near future, क्योंकि the public transport is very good and people who have cars here usually हम उनसे सुनते हैं about the parking charges and the congestion charges that have to be paid. कार होना is always beneficial जब आपको by road long distances यहाँ से travel करने हो. Otherwise public transport is really good here. Even आजकल bike hires यानी कि साइकिल हायर करने के options आ गए हैं, electric scooters हायर करने के options आ गए हैं, but a lot of people feel that it is not very safe. इसके अलावा if you really want to drive by yourself, there are of course car hires. There are a lot of companies जहाँ से आप cars hire कर सकते हैं and then you can drive yourself. There's always Uber. मुझे personally लगता है कि लंदन में Uber is very expensive as compared to the US या other cities within the UK या even भारत में. अगर जल्दी कहीं पहुँचना है तो always the tube is a good option until it is the non-rush hours. Underground trains लंदन में can be quite a discomfort अगर आप rush hours में जा रहे हो, जो कि हर बड़ी सिटी में होता है. Talking about travel from London, I feel it is very convenient क्योंकि जैसे within London public transport is very well connected. Within UK also there is a lot of good connectivity. मतलब लंदन से आप 2-2.5 घंटे की या मैक्स 3 घंटे की दूरी पर आप बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल कर सकते हैं just to explore. There can be a lot of day trips, a lot of weekend trips that you can take. London has a very good location. यहाँ से आप UK में अलग अलग जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. You can even travel to European countries within no time. यहाँ से बहुत सारी flights हैं. London has around 6 major airports like the City Airport,
Gatwick, Heathrow, Luton, Stansted. There are a lot of flights flying to the European countries. There is also the Eurostar train that can take you to Amsterdam or to Paris within 2 to 3 hours. Culture-wise, London is very multicultural. मतलब यहाँ पर आपको हर culture, race, religion, nationality, हर तरह के लोग मिलेंगे. तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फूड, लैंग्वेजेस, ड्रेसिंग, कल्चर सब कुछ मिल जाता है. एंड फूड वाइज ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड वैरायटी ऑफ कल्चर, देयर ऑल्सो इज अ वैरायटी ऑफ food found here. Usually people have come from some or the other culture. Everyone takes pride in having this diverse cultural identity. कई ऐसे country specific areas हैं, जैसे कि there are areas which have a lot of Indians, a lot of Turkish people. Country specific areas में जाके you can get the whole experience of their culture, of the food there. So you just have to do a little research online and you can reach such places. London का vegan scene is quite good. यहाँ पर vegan friendly food काफी मिल जाता है. So if you are a foodie unlike me, you will definitely not be disappointed in London. There is always so much to do for everyone here in London. आप हर weekend कोई ना कोई plan बना ही सकते हैं. There are many parks and open spaces here. बहुत सारी ऐसी green open spaces हैं, especially जिन्हें लोग summers में बहुत enjoy करते हैं. जो यहाँ river है, River Thames, वो पूरे लंदन में मियांडर करती रहती है. सो देयर आर लॉट ऑफ नाइस रिवर बैंक्स वेयर यू कैन जस्ट चिल. देयर आर पीपल हु टेक देयर kayaks and their boats out onto the river, and then there are people like us who just enjoy feeding the ducks या फिर रिवर साइड में बैठना या रिवर साइड पे चलना. देयर इज द वाइब्रेंट साउथ बैंक ऑल्सो फॉर इट इज वेरी फेमस. लंदन आई के पास से ही शुरू हो जाता है. लंदन में बहुत सारे फ्री म्यूजियम्स हैं. बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं दैट यू कैन जस्ट गो टू एंड एंजॉय, जैसे कि ब्रिटिश म्यूजियम, देन देयर इज अ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. इनफैक्ट ये दोनों म्यूजियम्स हैं जिसमें हम जब गए हमने पूरा म्यूजियम हम कवर भी नहीं कर पाए. आधे के करीब करके वी गॉट सो टायर्ड कि हमने सोचा अब हम बाद में फिर से करेंगे. फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, यहाँ पर ऑफ कोर्स देयर इज वेम्बली स्टेडियम एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सेसिबल स्टेडियम्स जहाँ पर पहुंचा जा सकता है यहाँ से ट्रेन से. पीपल रियली एंजॉय द स्पोर्ट्स सीन ऑल्सो हियर. एंड ऑफ कोर्स द फेमस ब्रिटिश pub culture. So depending upon what your interest is, you can even enjoy pub culture here. Frankly, मुझे pub food पसंद ही नहीं है. Evenings में या summer afternoons में people just sit in a pub and meet friends and just enjoy. So throughout the year, यहाँ लंदन में बहुत सारे events होते रहते हैं that you can book and attend, or there are even free. And otherwise also, there are a lot of touristy as well as non-touristy things to do everywhere in London for everyone. Personally, I find people here to be very patient. People will patiently wait in long queues. However, do not expect to strike conversations with the random strangers on the underground. यहाँ पर लंदन में it is famously known that when you're traveling on the underground, let people just be by themselves. That's how they like it. When walking on the road or station or anywhere, usually you'll find people using these words there. Please, सॉरी, एक्सक्यूज मी एंड थैंक यू. मैंने एटलीस्ट ये देखा हुआ है कि व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द रोड और अगर एक नैरो पाथ है, दे यूजुअली पीपल अलाउ ईच अदर टू, मतलब कोई रुक जाएगा, किसी और को पास होने देगा. सो द पर्सन हु इज अलाउड टू पास जाते जाते एक थैंक यू बोलते हुए जाता है. देयर इज ऑलवेज अ प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू. नाउ अबाउट एड्रेसिंग समवन, यूजुअली यहाँ पर चाहे किसी भी एज ग्रुप में लोग हों, पीपल एड्रेस ईच अदर ईदर बाय द फर्स्ट नेम और द टाइटल विद द लास्ट नेम. सो या तो आप किसी को पॉल करके एड्रेस करेंगे या तो आप कहेंगे मिस्टर वॉटसन. तो ये चीज़ इवन स्कूल्स में देखी जाती है कि बच्चे अपने टीचर्स को सर या मैम करके नहीं बुलाते. यहाँ पर टीचर्स को भी मिसेस वॉटसन या मिस्टर वॉटसन ऐसे ही करके बुलाया जाता है. यूजुअली हमने भारत में कैसे देखा है कि बच्चे अगर अपने से बड़ों को एड्रेस करते हैं, पेरेंट्स के फ्रेंड्स को या रास्ते पे किसी भी बड़ों को, तो वो अंकल बोल देते हैं, आंटी बोल देते हैं. यहाँ पर वो चीज़ नहीं है. बच्चे भी बड़ों को बाय देयर फर्स्ट नेम बुला लेते हैं, जैसे पॉल बोल दिया, या अगर फ्रेंड के पेरेंट्स हैं तो मिस्टर वॉटसन बोल दिया. ईशा के फ्रेंड्स भी कई बार मुझे ईशाज मॉम करके बुलाते हैं. ये बात तो हमें हर जगह सुनने मिलती है दैट लंदन इज एन एक्सपेंसिव सिटी. लंदन के अगर बाहर रह रहे हैं देन इट इज नॉट सो बैड, बट विद इन लंदन इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. मेनली आपका मेजर एक्सपेंस होता है हाउस रेंट का, एंड इसके बाद होगा ट्रैवल पर. दीज आर योर मेजर टू एक्सपेंसेस. डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया यू लिव इन, वेदर यू आर क्लोज टू स्कूल्स, ऑफिसेज, ये सब डिटर्मिन करेगा कि आपका हाउस रेंट क्या है. आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट इन
a lot of detail in one of my previous videos. You can check that out too. इस एक साल में मैंने ये चीज हर बार नोटिस की, especially if you have kids. हर चीज यहाँ टर्म टाइम पे चलेगी. जो स्कूल के टर्म्स होते हैं, जैसे इस वक्त समर टर्म चल रहा है, हर टर्म के बीच में एक हाफ टर्म का ब्रेक आता है. It becomes so difficult to find any kind of bookings at the last moment कि लोग पहले से बुकिंग्स करके रखते हैं. But for us, it was quite a shock to see कि लोग इतने एडवांस में हर चीज की बुकिंग करके रखते हैं. Recently we thought कि यहाँ से हम शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए. And it became so difficult क्योंकि हमको लगा वीजा के लिए हम फॉर्म तो ऑनलाइन सब भर देंगे, फिर बायोमेट्रिक्स की जो बात आती है तो उसमें यूजुअली ये लिखा रहता है आप 10-15 दिन पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. When we saw तो लोगों ने तो 3-4-5 कितने महीनों पहले से आगे तक के अपने बायोमेट्रिक्स के अपॉइंटमेंट बुक किए हुए थे. ऑल ऑफ दिस अपॉइंटमेंट पहले से बुक करना एंड हर चीज का एडवांस बुकिंग, प्री बुकिंग was relatively new to us. We were not used to इतने पहले से सब चीजें बुक करके रखना. हम random plans काफी बनाया करते थे, but now we are adapting to this. But still, I don't think we have caught up that much. Even doctors' appointments. तो यहाँ पर जो बहुत famous NHS है, the National Health Services, which is supposed to give you free basic health care, जो कि I don't think इज वेरी फ्री हमारे लिए, क्योंकि हम जब वीजा लेते हैं तो हम एक हेल्थ सरचार्ज दे के आए होते हैं. NHS में भी अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाएं किसी चीज का तो कई बार आपको कई महीने लग जाते हैं टू गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द NHS. इफ यू आर इन अ हरी यू जस्ट tend to go private. Now, basic repair jobs. I would really say कि ये basic जो चीजें होती हैं, यहाँ वहाँ थोड़ा ठीक ठाक कर देना, यहाँ पैच अप कर देना, प्लम्बिंग कर देना, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत I think हमें आनी चाहिए. As I had mentioned in the previous point, हर चीज का appointment and pre-booking लगती है. The same thing goes for electricians and plumbers and all these handy jobs. इस सब में भी आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब वो आपको आगे की कोई डेट देंगे, टाइम देंगे, जिसमें वो आकर पहले असेस करेंगे चीजों को. भारत में भी जस्ट यूज्ड टू दिस कि आप एक फोन कॉल करो या जस्ट ऐप पे एक बुक कर दो. विद इन नो टाइम प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स सब तुरंत अवेलेबल होते हैं. यहाँ पर इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव क्योंकि ये यूजुअली आवरली चार्ज करते हैं. सो बॉम्बे और दिल्ली में रहते हुए आई वाज यूज्ड टू इट कि शॉप्स एंड सुपरमार्केट्स और सब जो है वो रात को 9-10 बजे तक तो खुले रहते ही थे. कई बार तो वीकेंड्स पर जैसे फ्राइडे इवनिंग्स या सैटरडेज को प्लान्स ही बनते थे शाम 7-8 बजे. लेट्स गो आउट, थोड़ा बहुत तुरंत शॉपिंग कर लिया एंड ईटिंग आउट और व्हाटएवर. यहाँ पर दुकानें यूजुअली 5 बजे तक तो बंद हो ही जाती हैं. सुपरमार्केट्स वीकडेज पर मंडे टू फ्राइडे शाम देर तक खुले रहते हैं. लेकिन ये जो सुपरमार्केट्स हैं लाइक यू हैव वेट्रोज एंड सेन्सबरीज एंड होल फूड्स, संडे के दिन ये भी 4 o'clock 5 o'clock बंद हो जाते हैं. आप उसके बाद कहीं बाहर जाके शॉपिंग करना या आपको लास्ट मोमेंट कोई ग्रोसरीज खरीदनी है, इट विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शॉप्स, हम जब लंदन शिफ्ट हो रहे थे तो काफी लोगों ने कहा व्हेन वी कम टू लंदन वी शॉप देयर एंड दिस एंड दैट. यहाँ आके आई हैव नोटिस कि यहाँ पर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मॉल्स ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे. ये सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं. ज्यादा वैरायटी और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल मैंने बॉम्बे और दिल्ली के मॉल्स में देखे हैं ऑफ ऑल दीज ब्रांड्स हियर. सो लिविंग in London as an Indian. In short, if I have to tell you how difficult I find to live in London as an Indian, I would say none at all. I do not find it difficult at all living in London as an Indian क्योंकि as I mentioned, like any other big city, यहाँ लंदन में भी बहुत multicultural environment है. So there are people from all over the place over here. You never feel out of place. Besides, as we all know, लंदन में बहुत सारे Indians हैं. And of course, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा. Like अब हमको यहाँ रहते हुए 1 साल हो गया है, बट आई डू नॉट हैव सच अ सोशल सर्कल. मेरा अभी तक ऐसे इंडियंस का सोशल सर्कल बना नहीं है, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप फेसबुक पर जा सकते हैं, वहां पर बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज हैं. देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स दैट यू कैन ज्वाइन. हमने वैसे यहाँ पर बहुत सारे इंडियन सेलिब्रेशंस अटेंड किए हुए हैं. गणपति फेस्टिवल, दिवाली, होली, हम हर बार हर जगह गए. इंडियन ग्रोसरीज भी यहाँ लंदन में इजिली मिल जाती हैं. इनफैक्ट मैं यूजुअली इंडियन ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ. यू कैन इवन गो इन स्टोर्स एंड परचेज these groceries. आपने मेरे पिछले किसी वीडियो में तो देख ही लिया होगा. अबाउट ईटिंग आउट, इंडियन फूड जो हम बाहर खाते हैं वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं लगता. जब हम भारत में कहीं बाहर जाकर खाते हैं, इट्स अ टोटली डिफरेंट टेस्ट. सो आई वुड से the best place to get Indian food in London, if you are an Indian, is going to be your own home. क्योंकि कहीं पर भी आपको वो satisfaction नहीं मिलेगा. जब भारत में होते हैं तो बाहर जाके जिस तरह का हम खाना खाते हैं, चाहे वो पाव भाजी हो या any kind of चाट या whatever, उस तरह का satisfaction नहीं मिलेगा. But there are some places that come close to it, like there is Dishum. It is close to that flavor. Then there is Dhaba at the rate 49. एक जगह है called the Masala Zone, मधु. अब एक बहुत important चीज which
I usually find people talking about is the house help. तो भारत में रहते हुए we are used to it कि हमें हर तरह की house help मिल जाती है. There are people coming to clean for us, there are people coming to cook for us. हर चीज करने के लिए वहाँ पर house help available है. लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है. We have to do everything. Of course आप जब कोई घर रेंट पर लेते हैं, so dishwasher उसमें रहता है, washing machine रहती है, ड्रायर may or may not be there. सारा काम you have to do it by yourself. सब्जियां, ग्रोसरीज लाना, पकाना, बर्तन धोना. मैंने ये देखा है कि ये जो डिश वॉशर्स हैं उसमें मेरे सारे बर्तन नहीं जाते. कुछ तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं या कुकर होते हैं, मैं सारा कुछ उसमें नहीं डाल पाती. डस्टिंग करना, वैक्यूम करना, घर को साफ रखना, you have to do it all by yourself. इस सब के अलावा there is one thing that I still do, that whatever price I see on anything, immediately my brain calculates it into rupees. तुरंत मेरे ब्रेन में पाउंड से रुपीज में कन्वर्ट होता है. जैसे मैं वहां देखूंगी 5 पाउंड का कुछ लिखा है, immediately I think ओह 500 रुपए का है. Automatically my brain converts everything into rupees. Still, do I miss India? हमें भारत गए हुए साल भर हो गया है. एंड रिसेंटली ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि ईशा के स्कूल में आजकल बहुत बातें हो रही हैं अबाउट हु इज गोइंग वेयर फॉर हॉलीडेज. एवरी टाइम आई हैव द सेम आंसर. डू आई मिस इंडिया? एवरी डे. लंदन में सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट देयर कैन बी नथिंग like the warmth of Bharat. Warmth से मेरा मतलब मौसम से ही नहीं है. It's just the culture, the people. Bharat is like a warm hug. So we are looking forward to our trip. हम देख रहे हैं कि हम कब भारत जल्दी से जल्दी विजिट कर पाएं. I will only say that no matter where you live, just make the most of it. And in the end, home is where the heart is. So I have tried to cover a lot of points in a very short time. Do let me know if you would like me to elaborate इनमें से किसी भी point पे अगर मुझे और वीडियो बनाना चाहिए और there is something that you would like to know about living and moving to London. Do let me know in the comments or you can email to me and I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, bye bye.